मेन क्वेश्चन है जो इतने ज़्यादा अनऑफिशियल लोग उनकी जो पॉपुलेशन जो लेवल द पीपल इट हैज़ इंक्रीज अ लॉट. व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट कि और कैसे सिचुएशन को संभाल सकते हैं और कैसे कितनी ज़्यादा अफेक्ट हुई है ये चीज़. हाँ, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. क्योंकि देखें, जहाँ भी इस तरह से होता है ना, कोई कनाडा है, यूएस है, यूके है, जहाँ पे इमिग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इमिग्रेशन होती है, उनके सिस्टम्स हैं ऑफ पीपल कमिंग इन सारा. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कैनेडियंस पे, कैनेडियन इकोनॉमी पे, लाइफ इन कनाडा पे. Correct. एक्सप्रेस एंट्री completely changed, I would say, the way sort of immigration. और बहुत लोगों की वाट लगा थी. Hello guys, welcome to the episode number 11 of Bliss of Life. Well, we have a very important guest today. He is a immigration consultant और हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू पूरी कोशिश करी है कि जो important सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करी जाए. And I hope you will get the answers to your questions. So thank you again for watching this podcast and I hope you will enjoy it. Hi sir, how are you? Hello, I'm doing well. How are you? I am good, amazing. I wanted to request you if you can introduce yourself to the audience and that would be great. Sure. So my name is Abdullah. By profession, I'm an immigration consultant. I've been in Canada for about 12 years now and it's been quite a journey. I've had the pleasure of helping hundreds of families, hundreds of clients with their immigration needs over the last 6, 7, 8 years. And prior to that, before I immigrated to Canada, I was practicing as a lawyer. And that background really helped me to transition into this role here in Canada. So I moved to Canada about 12, 13 years ago with my family. My kids have grown up here. And Canada, I guess, is home now. Wow, that's so nice. और when did you come? आप यहाँ पे कब आए थे कनाडा में? मैं यहाँ आया 2013 में. Okay, ठीक है. And how was it? Like I know in 2013 it was so very different. It was. And पहले मेरे जो नानी नानू है, they came 25 years ago. Wow. Here and they used to tell me the stories कि बहुत पहले different होता था, अभी तो बहुत different है. पहले में और अब में सबसे ज्यादा आपने मेन डिफरेंस क्या देखा कनाडा में? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा एक तो अपनी इमिग्रेशन के उसमें कि इमिग्रेशन कैसे डिफरेंट थी उस वक्त और अब इतनी डिफरेंट है. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आई ऑलवेज से दैट इमिग्रेशन इज नॉट नंबर्स. इमिग्रेशन इज एक्चुअल ह्यूमन लाइव्स, राइट? सो इट इम्पैक्ट्स real people, real lives. So when we say immigration, sometimes we have this tendency to dehumanize it, right? Immigration just numbers 300,000, 200,000, but that's 200,000 people, right? So एक तो मैं I will talk about के immigration का process कैसे different था, and then living in Canada, जो था उस वक्त 2013, 2012 में कैसा था, अब कैसा है. So I mean, I was, I guess, amongst the lucky, a group of people who started their immigration process before express entry. तो उस वक्त express entry नहीं था. तो उस वक्त I would say अब से अगर आप compare करो तो relatively straightforward process था. बहुत ज़्यादा लोग qualify करते थे. It was much easier, much simpler. Correct. Time लगता था, कुछ लोगों को बहुत उनकी processing में time लग जाता था. लेकिन ये कि certainty थी process में कि अगर आपके पास ये points हैं तो your application will get processed. Correct. तो बस मैंने उसमें start किया और हमारा हो गया काफ़ी अच्छे टाइम में हो गया. बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा. और उसके बाद जब हम यहाँ आए तो विद इन अ फ्यू इयर्स 2015 में एक्सप्रेस एंट्री शुरू हो गई. एक्सप्रेस एंट्री कंप्लीटली चेंज्ड आई वुड से द वे sort of immigration. और बहुत लोगों की वाट लगा थी. हाँ, बस वो इमिग्रेशन का प्रोसेस चेंज हो गया. इमिग्रेशन के नंबर्स चेंज हो गए और अब हम देखते हैं कि और बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं. तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था उस टाइम पे. I would say, I mean 2013 now is what 11, 12 years ago. तो बहुत चीज़ें डिफरेंट थी. I would say हाउसिंग एक डिफरेंट लेवल पे थी. उस वक्त भी लोग बोलते थे कि हाउसिंग, घर ले लो, आते घर खरीद लो, कर लो. ये कनाडा में आई थिंक फेवरेट पास टाइम है लोगों का, टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट. तो उस वक्त मैं जब आया यहाँ पे तो मैंने जब देखा घरों का, मुझे लगा बहुत एक्सपेंसिव है.
और जो है जो प्राइसेस थी वो वर्थ इट नहीं है फॉर व्हाट वाज ऑन ऑफर। तो अगर मुझे उस वक्त एक्सपेंसिव लगता था तो अब तो जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच है। तो डिफरेंसेस थे। आई वुड से जॉब मार्केट थोड़ी डिफरेंट थी। आई वुडंट से कि इट वाज ईजियर बट रिलेटिवली कंपेयर्ड टू टुडे इट वाज यू कुड स्टिल सॉर्ट ऑफ फाइंड वर्क जॉब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए इट वाज डिफरेंट। और जो बहुत एक बड़ा चेंज है लास्ट 10 ईयर्स में वो ये इमिग्रेशन के नंबर्स में है। अब बिकॉज मैं हूँ इमिग्रेशन में, आई लुक एट दीज नंबर्स, आई लुक एट इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज स्टोरीज ट्रेंड्स एवरी डे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन द लास्ट 10 ईयर्स नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हु केम टू कैनेडा बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट। तो जो अभी हम देखते हैं और जो मे बी वी कैन टॉक अबाउट द चेंजेस एज वेल, जो अभी हम देखते हैं कि इमिग्रेशन इतनी मुश्किल है और इतना वो इन्होंने कोटा कम किया और नंबर्स कम किए, वो डायरेक्ट रिजल्ट है पिछले 10 ईयर्स की मिसमैनेजमेंट का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे अगर आप रहते हो, आप हो यहाँ पे 10 ईयर्स से या इवन उससे पहले से, तो जब इतना एक इन्फ्लक्स आ गया लोगों का, तो इट impacted and it affected a lot of different things. Correct. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो एक स्काई रॉकेट किया ओवर द लास्ट 10 years and what impact it had on several different things. तो ये मेन डिफरेंसेस हैं which I would say कि from the time that I came to what I see now. Got it. मेरा बहुत मेन क्वेश्चन है कि आज अभी मैं इमिग्रेशन की मैं बात नहीं करूँगी, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब्स। पहले भी जॉब्स की बहुत दिक्कत आती थी, अभी भी जॉब्स की बहुत दिक्कत आती है। ऐसा क्यों है? Why this has been still the same and why कि लोगों को अभी भी जॉब्स क्यों नहीं मिलती? And I also feel that people also don't work on their resume well. I think ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू सेवरल डिफरेंट थिंग्स, राइट? जो आपने लास्ट में बात की ना, लेट्स स्टार्ट विद दैट कि रेज्यूमे पे नहीं काम करते हैं या वो नहीं करते हैं। आई एग्री विथ यू एंड आई वुड ऑल्सो से कि आजकल की जो मार्केट है ना, वो ऐसे खाली रेज्यूमे और इससे कुछ नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड के थिंग्स हैव मूव्ड ऑन, थिंग्स हैव चेंज्ड। बहुत से लोग जिनसे मैं बात करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, आते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ अच्छा भाई आप लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट कर लो, ठीक है? मुझे बोलते हैं यार मैं तो हूँ ही नहीं लिंक्डइन पे, ठीक है? अब यू आर अ मिड करियर प्रोफेशनल, यू आर इन योर 30s, अर्ली 30s में आप हो, आपके पास कोई अबाउट 10 years का वर्क एक्सपीरियंस है, आप लिंक्डइन पे नहीं हो। अच्छा फिर मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ तो 30 कनेक्शंस, 50 कनेक्शंस, तो ये एक इसको आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है। यू आर कंपीटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल। थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी कंपेटिटिव नाउ एंड इट विल बी दिस वे गोइंग इनटू द फ्यूचर। तो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप अवेयर नहीं हो, आपको पता नहीं है कि यार व्हाट इट टेक्स टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। व्हाई वुड मैं एक एम्प्लॉयर हूं, व्हाई वुड आई टेक अ चांस ऑन यू? व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? मैं एक जॉब एडवर्टाइज करता हूं, आई गेट 700 एप्लीकेशंस, ठीक है? मैंने एक बंदा हायर करना है। What makes you different? Correct. Right? तो कुछ तो आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए रेज्यूमे है आपका, एक ओवरऑल एक प्रोफाइल है आपकी, लिंक्डइन है, नेटवर्किंग एबिलिटी है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट डज इट टेक नाउ टू डिफरेंशिएट माई सेल्फ। करेक्ट। ठीक है कि मैं क्या ऐसी चीज करूं जो सब लोग या तो नहीं कर रहे हैं या सब लोग कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं। करेक्ट। तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा। तो एक तो ये है, बट देन जो दूसरे उसमें हैं जो आपने टॉपिक्स जो रेज किए कि क्यों यहाँ पे पहले भी मुश्किल होता था। देखिए कनाडा इज अ वेरी स्मॉल मार्केट, राइट? ये आपको ये एक सबको समझना चाहिए कि कनाडा आपको कंट्री तो बहुत बड़ी है बट लोग बहुत कम है। करेक्ट। सो टू गिव यू एन आइडिया, कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो यूएस की स्टेट टेक्सास जितनी है। सो उनकी एक स्टेट टेक्सास की पॉपुलेशन कनाडा के इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि स्केल का डिफरेंस कितना है। ठीक है, और ये कैनेडियन पॉपुलेशन स्प्रेड आउट है ओवर द होल कंट्री, वो टेक्सास एक स्टेट में इतने लोग हैं। करेक्ट। तो अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी की बात करते हो, आप कोई जैसे यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और व्हाटएवर, ऑब्वियसली आई मीन आपको एक मार्केट साइज चाहिए। इसी तरह अगर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट है, आप यू लुकिंग फॉर वर्क, यू आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, लुकिंग फॉर अ जॉब, तो जो यहाँ कंपनीज हैं उनका स्केल छोटा है, साइज छोटा है, इतनी पोजीशंस नहीं है, राइट? और जो अच्छी पोजीशंस हैं, सो यू सी कोई भी कॉर्पोरेट में अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक अ पिरामिड, राइट? अच्छी पोजीशंस कम होती जाती हैं द हायर अप यू गो, लेकिन उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। फिर लाइक आई सेड ओवर द लास्ट 10 years इतने कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ पीपल कमिंग इनटू कनाडा,
एंड कीप इन माइंड दीज आर स्किल्ड पीपल, राइट, जिनका Yes. वो आ रहे हैं कि भाई आपके पास लैंग्वेज एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो यू हैव दीज एजुकेटेड स्किल्ड पीपल कमिंग इन एवरी ईयर इन द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, यू नो, बाय द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स. लेकिन यहाँ मार्केट या वो जो ओवरऑल एक वो है, आप उसको जॉब मार्केट कह लो, वो उस तरह से तो ग्रो नहीं कर रहा है कि वो Correct. सबको एब्जॉर्ब कर लेगा. Correct. So that's why we, you know, hear about these issues from people who immigrated to Canada even 20 years ago, you know, 25 years ago. Correct. कि you know we came here, हमारे foreign work experience की कोई job market में value नहीं थी, हमारी foreign qualifications की कोई value नहीं थी. We had to start from, you know, what they call survival jobs. Correct. कि यार ये कर ले, फिर आप you know you gradually make your way up. Correct. Right? तो ये पहले भी था. और इसके जैसे मैंने कहा, one reason तो ये है कि there's just, you know, the size or scale of things. तो वो there's just not enough good jobs, you know, for everyone who's moving here. Correct. फिर as time went on, और अभी भी हम देखते हैं, things become more and more competitive. You know, there are more people Correct. who are looking for the, you know, for those jobs. Correct. तो ये कुछ है, कुछ इनकी पॉलिसी फेलियर है, जिसको मैं जो है सबको ये कहता हूँ कि मतलब इसको भी आपको देखना चाहिए कि आप ऑन द वन हैंड कह रहे हो कि हमें स्किल्ड इमिग्रेंट्स चाहिए, वी वांट स्किल्ड इमिग्रेंट्स, लेबर शॉर्टेज है, स्किल्ड इमिग्रेंट्स चाहिए, बट जॉब मार्केट आपको एक और मैसेज दे रही है कि हमें आपके स्किल्स नहीं चाहिए, हमें लोकल लोगों के स्किल्स चाहिए, यू नो, पीपल हु हैव कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस और Correct. कैनेडियन क्वालिफिकेशंस. तो दिस डिसकनेक्ट हैज एग्जिस्टेड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. Yeah. तो पार्टली ये है, और फिर कुछ और रीजंस होते हैं, यू नो. अभी जैसे आप देखो तो अभी तो पूरी दुनिया में जॉब मार्केट जो है वो इज नॉट दैट डूइंग दैट Doing ग्रेट, great, राइट. yeah. तो कुछ तो ऐसे वो रीजंस बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं. वो इस वक्त आप देखो सिर्फ ले ऑफ्स की न्यूज आती हैं, कोई और न्यूज ऐसी नहीं आती कि यू नो दिस न्यू कंपनी इज हायरिंग और यू नो Yeah. देव हायर्ड 5000 पीपल या 2000 वैकेंसीज हैं कहीं. ऑल यू हेयर अबाउट इज ले ऑफ्स राइट नाउ. तो कुछ तो इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं. I also wanted to ask you कि for example जो resume है वो लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, how they can work on it, और वो अपनी opportunities जॉब को लेके कैसे बढ़ा सकते हैं. देखें, अब व्हाट आई वुड से हियर इज कि वो वाला टाइम जो था ना कि आप बस रेज्यूमे इज एवरीथिंग, दैट टाइम हैज लॉन्ग गॉन, राइट. अब ऐसे नहीं है कि आपने अपना रेज्यूमे जो है वो कहीं भेजा. अगर आपका जो पूरी स्ट्रेटजी है जॉब हंटिंग की वो ये है कि आप बस रेज्यूमे भेजोगे और आप वेट कर रहे हो कि आपको कोई इंटरव्यू आ जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये स्ट्रेटजी आजकल इट डजंट वर्क, ठीक है. और इट माइट वर्क बट इट माइट टेक यू अ रियली लॉन्ग टाइम, ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू कीप हियरिंग अबाउट यू नो दीज स्टोरीज कि यार मैंने अप्लाई किया 500 जॉब्स तो मुझे 10 इंटरव्यूज आए और यू नो इस तरह से. आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ नॉट द रियलिटी. वो रियलिटी है. अभी हमने जैसे बात की कि थिंग्स आर गेटिंग मोर कंपेटिटिव, राइट. और जो एक जॉब मार्केट का जो साइज़ है वो और रीजंस की वजह से भी श्रिंक हो रहा है, राइट. ये एआई है और अब ये ऑफ शोरिंग है, आउटसोर्सिंग है. सो यहाँ पे कनाडा जैसी कंट्री में इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं जॉब मार्केट में, नंबर्स में, वैकेंसीज में, जॉब वैकेंसीज में. सो आई थिंक हैविंग जस्ट अ रेज्यूमे ओनली स्ट्रेटजी इज जस्ट नॉट अ गुड आइडिया एनी मोर. जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, मतलब आप रेज्यूमे पे अगर फोकस आपको करना है तो बहुत सारे यहाँ पे यू नो आपको मिल जाएंगी, सर्विसेज मिल जाएंगी जो आपके रेज्यूमे को देखेंगे, एवेल्युएट करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो, कैसे बेटर वर्ड कर सकते हो. तो वो तो आप कर सकते हो, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, यू नो, आप करके उसमें आपका रेज्यूमे एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड पे आ जाएगा, ठीक है. स्पेशली कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर आप उसमें वो यू नो अचीवमेंट्स या लैंग्वेज या कुछ आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो, ठीक है. आपने कोई सर्विस ले ली, उसमें आपका रेज्यूमे थोड़ा इवेल्युएट हो जाएगा, थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा. अदर देन दैट, जस्ट लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट, कि आपको ये देखना है कि वन यू नो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है आपकी, या बस सिर्फ ओनली रेज्यूमे और आप सिर्फ जॉब बोर्ड्स पे जो है जॉब देख रहे हो एंड यू आर अप्लाइंग. आपको देखना है कि किस तरह से और एवेन्यूज़ हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे जॉब्स हैं, लिंक्डइन पे आपका नेटवर्क है, लिंक्डइन पे आपके कनेक्शंस हैं, आपका पर्सनल नेटवर्क है. यू नो समवन हु वर्क्स एट अ कंपनी जहाँ पे आप चाहते हो यू नो कि आप भी जॉब करो, तो आप उसको लेवरेज करो कि यू नो मे बी दैट पर्सन कैन पास ऑन योर रेज्यूमे टू समवन, बट दैट रेज्यूमे अगेन हैज़ टू रिफ्लेक्ट दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स, राइट. तो अगर आपका रेज्यूमे बहुत बेसिक है या उसमें अचीवमेंट्स आपकी हाईलाइट नहीं हुई हैं या वो यू नो उस जो जिस लेवल पे या जो जॉब आप टारगेट कर रहे हो उसका उसके लिए वो जो है मैच नहीं करता, तो फिर यू नो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. तो
एक बहुत अच्छा मुझे किसी ने कहा couple of years ago कि looking for a full time job is a full time job. That is so true. तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने हाफ एन आवर दिन में जो है बैठे आपने वो 2-3 रेज्यूमे भेजे और आपने कहा मैंने जॉब सर्च कर ली, ठीक है. तो वो ये अब एक पूरा एक प्रोसेस है, आपकी प्रोफाइल, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस, आपके अचीवमेंट्स, आपका रेज्यूमे, आपका कनेक्शन. And like I said, I mean, it's going to continue to get, more challenging. Correct. And I think the people who will thrive, not just survive, thrive are people जिनकी ये multi-pronged strategy है कि यार मैं अपनी online presence को मैं elevate करूं, मैं अपना resume जो है updated रखूं, उसको मैं एक certain way में करूं, मैं अपना network leverage करूं. These are the people I think who will thrive. Correct. When I search jobs, it's actually पूरा दिन I'm actually Right. searching for it, and by God grace I've been very lucky. Right. That it's important that you work on your skills. People just don't work on their skills. I couldn't agree with you more. Skills और बहुत सारी चीजें हैं जैसे अगर आप communication skills हैं, right? आपको let's say आपको मिल गया interview, right? आपने resume भेजा, आपको interview आ गया, आपने किसी से कोई network के through interview आ गया. You are not the only person they are going to interview. They are probably going to interview, depending on the role, 3, 5, 6, 10 people maybe. Yeah. Again, वो आपको क्यों चूज करेंगे? ऐसी क्या चीज है आपके अंदर which stood out or stands out कि वो आपको चूज करें rather than those other 6 people. Correct. Right? तो उसमें फिर अब आपके different set of skills हैं. Communication skills हैं, for example. आप कितना आप जो है अपनी let's say एक बड़ा common interview में question होता है कि okay, tell us a little bit about yourself. That this is usually the first or second question. Correct. कितने लोग हैं जो यहीं स्टम्बल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या बोलें यहाँ पे, राइट? कि वो आप इररेलेवेंट चीज़ें बताना शुरू कर दो, ठीक है? तो ये भी एक स्किल है, इंटरव्यू करना एक स्किल है, राइट? तो इसमें आप इन्वेस्ट करो. अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते, आप सिर्फ यूट्यूब पे चले जाओ और आप देखो कि अच्छा यार इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, ठीक है? तो आप जब 5, 6, 7 वीडियोस देख लोगे तो आपको एक वो कॉमन थीम नजर आएगा. ओके यार, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस, आई हैव टू, एंड देन प्रैक्टिस दैट. करेक्ट. राइट? आप प्रैक्टिस करो उसे. आप मे बी इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और विद अ फ्रेंड और सम कॉलीग के, ताकि आपको आदत हो वो आंसर करने की. करेक्ट. राइट? आपको वो एक फ्लो बनता है करते हैं. आई मीन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट जब मैं कनाडा आया तो मैंने भी 2-3 जॉब्स की, 4 जॉब्स की. तो मैंने उस प्रोसेस में से गुजर के देखा ही, क्योंकि उससे पहले लाइक आई सेड आई हैड माय ओन प्रैक्टिस बिफोर मूविंग टू कनाडा, सो आई नेवर रियली हैड अ जॉब. मेरा तो रेज्यूमे भी नहीं था, बिकॉज आई नेवर रियली हैड द नीड फॉर इट. तो जब मैं यहाँ आके मैंने अपना रेज्यूमे बनाया, आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वक्त सीखी. यार इट्स नॉट ईजी टू टॉक अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू आर ऑन द स्पॉट. अच्छा, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू वांट मी टू टेल यू, राइट? तो ये चीज़ें आजकल की मार्केट में, आजकल के हालात में, इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप इस पर फोकस करो कि मैं ये, अच्छा ठीक है, फर्स्ट स्टेप रेज्यूमे, सेकंड स्टेप हाउ टू अप्लाई, थर्ड स्टेप इंटरव्यू आ गया. तो इंटरव्यू में मुझे किस तरह आप यू कैन नॉट बी अंडर प्रिपेयर्ड जब आप इंटरव्यू कर रहे हो. यू हैव टू गो एंड यू हैव टू वाओ द अदर पीपल. एंड आल्सो हाउ यू ड्रेस्ड अप, दैट्स पार्ट ऑफ इट, राइट? आप people don't get it. हाँ, तो वो वही पीपल हैं जो उसमें अनप्रिपेयर्ड जाएंगे. Correct. जिनके पास आंसर्स नहीं होंगे. पीपल हु आर प्रिपेयर्ड, पीपल हु टेक दिस वेरी सीरियसली, एंड पीपल हु रियलाइज के कितना मुश्किल है, विल नेवर गो लुकिंग like they've just rolled out of bed. Correct. They will take that extra 15 minutes. They will make sure that they are presentable, professional. तो and they are the ones who will get the job. और आप बोलते रहो कि यार इसको जॉब हमेशा मिल जाती है, तो वो इसीलिए मिलती है क्योंकि वो that person is doing all these things. I'm telling you, you have answered the question of millions of people. क्योंकि आजकल ये स्टेट चल रही है. हाँ, बिल्कुल है. 80% of my friends don't have jobs, and they call me and they tell me यार क्या करें. तो this is a very major thing. Thank you for answering. ये बहुत important point था ये. And also अपने starting of the conversation में ये भी बोला था कि आप law practice करते थे. आप मतलब please tell us about कि आप क्या, कौन सी law practice करते थे, क्या थी, and how did you shift it to being an immigration consultant? Why didn't you practice over here? That's a great question. So मैं before moving to Canada, so I worked with my father who was a lawyer and he had a law firm. Mostly civil practice थी हमारी, construction related cases हम लोग करते थे. And when I moved to Canada, I did think about doing the conversion, getting my license here. लेकिन उस वक्त जो मैंने देखा कि यार it would have taken me another year
to 2 years depending on you know how quickly I took those exams. तो एक प्रोसेस होता है उसमें आपको वो बताते हैं कि how many exams you have to retake, right? तो वो it can be 4, it can be 5, it can be 6. तो मुझे लगा कि you know अगर मैं करूँ तो मुझे this is going to take me another maybe 2 years, you know, for the whole process कि आप एग्जाम्स लो, फिर आप you know एग्जाम वो बार एग्जाम जो होता है वो करो. तो बस मैं I just wanted to try something different. ठीक है, मैं थोड़ा वो था कि you know let's try something different. तो मैं I looked at buying businesses for example कि let's you know business कभी नहीं किया था, let's try that. तो वो मैंने देखा for you know certain reasons वो नहीं मैंने फिर वो किया. मुझे जॉब मिल गई, मैंने वो शुरू कर ली. Also the thing was कि when I moved here I had 2 kids, right? तो वो ऐसे नहीं था कि I had the luxury and the time to say कि चलो 2 साल में अभी ये लॉ करता हूँ, फिर देखेंगे, फिर करेंगे. तो it was a you know variety of different reasons. Correct. और फिर इमिग्रेशन में इसलिए क्योंकि आई डिड लाइक अ कपल ऑफ डिफरेंट जॉब्स. ठीक है, मैंने किया. मुझे लगा कि ऐसी कोई चीज़ करनी चाहिए जो ऑब्वियसली एक तो जिसकी कोई डिमांड है. तो इमिग्रेशन की डिमांड कनाडा में तो you know, वो तो बहुत ज़्यादा है. अभी तो सिनोनिमस है ना कनाडा एंड इमिग्रेशन. तो एक तो वो था, और मैं खुद रिसेंट आया था तो मैंने खुद वो प्रोसेस देखा था. मैंने आई वाज लकी कि मेरा बहुत अच्छा कंसल्टेंट था जिसके थ्रू मैं आया था. तो मैंने देखा फिर, लेकिन बट द मोर टाइम आई स्पेंट हियर द मोर पीपल आई मेट जो किसी के साथ स्कैम हो गया, किसी को गलत एडवाइस मिल गई, किसी के साथ कुछ और हो गया. तो आई रियलाइज कि यार देयर इज दिस नीड ऑफ यू नो एथिकल कंसल्टिंग, के नॉलेज बेस्ड एथिकल कंसल्टिंग. तो एक तो ये था. दूसरा फिर आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग व्हिच वाज समवॉट यू नो सिमिलर टू माय बैकग्राउंड. तो ये भी दिस इज एन एरिया ऑफ लॉ, इमिग्रेशन लॉ है ये. करेक्ट. तो वो एक नेचुरल सा मैच था. तो फिर मैंने उसको दो, मैंने कहा ठीक है, नीड भी है, एक मेरी डिज़ायर भी है कि यू नो लोगों को प्रॉपर एथिकल एडवाइस दें, और दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट आई वाज डूइंग. ठीक है, एक ये स्पेसिफिक एरिया है, इट्स नॉट लाइक द होल सॉर्ट ऑफ यू नो लॉ का वो. तो ये फिर मैं आई लुक्ड एट द प्रोसेस. वो एक प्रोसेस था, उसमें आपको एक कोर्स करना था, फिर आपको लाइसेंसिंग एग्जाम लेना है, सब कुछ करना है. तो आई वेंट थ्रू दैट एंड यू नो दिस जस्ट हैपेंड. Got it. Out of the context question है. आपने कभी सोचा था आप ऐसे पॉडकास्ट कर रहे होंगे लोगों के साथ, sharing a knowledge? Have you ever you know think about कि you know I want to do this, maybe you know I कभी ऐसा सोचा कि automatically just happened? जो है मतलब you know I keep telling people that you know my generation is probably you know amongst the last few generations who remember life before all of this, ये phone और podcast और this or that. Yes. You know I grew up without any of you know Correct. any social media, any phone, any Google, YouTube, nothing. Right? तो हम लोगों के लिए अभी भी ये हमें वो लगता है कि यार this is something new, even though it's not really new anymore. Correct. Right? Because we grew up without any of these things. तो हमें तो life पता है कि क्या थी. तो मुझे तो अभी भी लगता है कि you know ये this is like you know so new. But in terms you know प्रोफेशनली, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि आपको अवेयर होना चाहिए कि जैसे यार ठीक है सिर्फ रेज्यूमे से कुछ नहीं होगा, अब मुझे अपना ये भी करना है, मुझे ऑनलाइन भी करना ही करना है. तो द सेम इज ट्रू फॉर पीपल लाइक मी एज वेल. कि अगर अब मैं ये बोलूँ कि यार ये मुझे पॉडकास्ट वॉडकास्ट नहीं समझ आता, या मुझे ये यू नो पोस्ट करना उस पर सोशल मीडिया पे मुझे समझ नहीं आता, मुझे ये इंस्टाग्राम टिकटॉक समझ नहीं आता, तो आई विल लूज आउट. राइट? जो लोग इसको लेवरेज कर रहे हैं, जिन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया कि यार दिस इज पावरफुल, राइट, आई कैन गेट टू 1 million पीपल यू नो दिस वे. जो अगर मैं रेगुलर वो जो ट्रेडिशनल होते थे एडवर्टाइजिंग के मेथड्स होते थे, तो वो तो उनकी रीच कभी इतनी नहीं थी. सो यू हैव टू अडेप्ट. तो सोचा तो कभी नहीं था कि ऐसे करेंगे, लेकिन फिर एट सम पॉइंट आपने रियलाइज किया कि अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे. अदर पीपल विल यू नो मूव पास्ट यू हु आर लेवरेजिंग दीज थिंग्स. करेक्ट. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत, फिर आई वाज लकी अगेन कि वो यू नो 2-3 मेरे हैं नेटवर्क में ही लोग हैं, दे वर डूइंग पॉडकास्ट और इंफॉर्मेशन सेशंस ऑनलाइन या सेमिनार ऑनलाइन, इस तरह से कर रहे थे. तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट. तो फिर मुझे उससे लगा कि यार तो बड़ा अच्छा एक फॉर्मेट है, बड़ा अच्छा मीडियम है, यू कैन रीच अ लॉट ऑफ पीपल. राइट? तो सोचा नहीं था टू आंसर योर क्वेश्चन, बट सोचना पड़ा, यू नो, गिवन के how things are evolving. I just want to give you a compliment. Your energy is so energetic. I am feeling so excited to talk. I can talk 2 hours, 3 hours with you. इतना कुछ बात करने को है, especially today about immigration and the आजकल जो हालत चल रही है, everything.
everybody, whenever, especially आजकल, it's very difficult to get PR, and Yes. anybody I meet, they're just asking, यार क्या करें, you know, what should we do? So it's a very important point you Right. have covered, and thank you again pleasure. for your presence. I'm very excited to talk about more. Thank you. एक और क्वेश्चन है इसके बारे में कि अभी मेनली ज़्यादातर लोग बात करते हैं हम कनाडा, सॉरी इंडिया या कहीं से भी, आई एम फ्रॉम मिनिमम सेइंग इट, अगर वो किसी और कंट्री से यहाँ आए तो इट्स बेनिफिशियल और इट्स नॉट बेनिफिशियल टू कम. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो इतना सब्जेक्टिव है और इतना पर्सनल है कि आई डोंट थिंक कोई और आपको बता सकता है कि बेनिफिशियल आपके लिए है कि नहीं है. ठीक है, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, राइट? जब मैं हाई स्कूल में था और आई वाज थिंकिंग अबाउट लाइक यू नो गोइंग अब्रॉड फॉर माय स्टडीज, ये बात मैं कर रहा हूँ कि अबाउट 300-400 साल पहले की, तो उस वक्त जो है माइंडसेट बहुत डिफरेंट था, राइट? उस वक्त ये इमिग्रेशन नहीं था आपके माइंड में. उस वक्त वाकई आप ये सोचते थे कि आप, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, राइट? ये इमिग्रेशन और एजुकेशन का जो अब मिक्स है, राइट, ये उस वक्त नहीं था. हाँ, इवन एट दैट टाइम देयर वर पीपल हु यूज्ड टू थिंक दैट वे कि यार ओके, आई यू नो इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टे ऑन, आई विल स्टे ऑन, राइट? बट अब तो एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन का मतलब है इंटरनेशनल एजुकेशन, immigration. Correct. Right? Nobody is going abroad spending hundreds of thousands of dollars just for education and then coming back, right? Especially from our part of the world. Yeah. हाँ ठीक है, कोई जर्मनी से आया यहाँ पे मास्टर्स करने, वो चला जाएगा वापस क्योंकि उसने जर्मनी वापस जाना है. Correct. Right? तो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग जो है उन्होंने वो एजुकेशन और जो एक्सपेंसेस और जो रिसोर्सेज आप स्पेंड करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो वो उसको फिर वो पे ऑफ भी चाहिए उन्हें कि यार हमें इमिग्रेशन अब तो पासपोर्ट लेना है हमें, राइट? तो ये माइंडसेट मेरे टाइम पे नहीं था. तो मैं यूएस गया पढ़ने, ठीक है, और मैं उसके बाद वापस चला गया, राइट? एंड देन आई वेंट बैक, आई यू नो डिड माय लॉ, स्टार्टेड वर्किंग विद माय फादर. वो यूएस में जब आप थे तो आप सोचते हो यार अगर यहीं रह जाएं, दिस इज नाइस, लेकिन हाँ नहीं भी हुआ तो ठीक है. अब तो कंप्लीटली चेंज हो गया. तो इसीलिए बेनिफिशियल है कि नहीं है ये तो एक डिबेट है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अब क्या है कि somebody, there is this kid in India अभी, ठीक है, 18 years, यहाँ पे आप 2 years का अगर आपको डिप्लोमा करना है या आपको बैचलर्स डिग्री करनी है, ठीक, यू आर लुकिंग एट स्पेंडिंग hundreds of thousands of dollars. तो आप ये ऐसी तो नहीं करोगे कि यार मैं करके वापस चला जाऊं, ठीक है? तो बेनिफिट का तो इसमें वो है नहीं, इसमें तो प्रैक्टिकलिटी है कि यार ये मैं पैसे खर्च करूंगा तो मुझे तो ये पे ऑफ चाहिए, मुझे तो ये सिटीजनशिप चाहिए. दैट्स नंबर 1. करेक्ट. फिर बेनिफिट और सक्सेस everybody will define differently. मैं आपको, क्योंकि I speak with on average about 20 to 25 people per week, ठीक है, कभी इससे भी ज्यादा. तो मुझे इतनी स्टोरीज मैं सुनता हूँ, इतना डिफरेंट लोगों की चीजें मैं सुनता हूँ, तो मेरा एक यू नो वो बहुत एक्सपोजर बहुत ब्रॉड है इसकी वजह से. तो बहुत से लोगों के लिए सक्सेस थी कनाडा आना. द मोमेंट दे केम आउट ऑफ यू नो पियर्सन एयरपोर्ट टोरंटो से, वो उनकी सक्सेस थी. वो यही सोच के आए थे बस कनाडा पहुंच जाएं किसी तरह, राइट? ठीक है. अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट मेरा ड्रीम है कनाडा जाना. अच्छा, ड्रीम को थोड़ा डिफाइन करो कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट. कुछ नहीं पान, बस कनाडा जाना मेरा ड्रीम है. तो उसकी सक्सेस तो हो गई जब आप कनाडा आ गए, आपका ड्रीम पूरा हो गया. अच्छा, कुछ लोग आपको मिलेंगे जिन जो बड़े यार मैं जाके पढ़ के आई वांट टू वर्क फॉर अ फॉर्च्यून 500 कंपनी और मैं अपना ये करियर ट्रैजेक्टरी मेरी होनी चाहिए. दैट इज हाउ दे डिफाइन सक्सेस, ठीक है. तो उसकी सक्सेस और इसकी सक्सेस में तो बहुत डिफरेंस है. उसके बेनिफिट में, वेदर इट वाज बेनिफिशियल फॉर दैट पर्सन और वेदर इट इज बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा फर्क है. तो इसका कोई आंसर आपको इस तरह से कोई और नहीं दे सकता है. बहुत से लोग जैसे उनकी जो बेनिफिट को या सक्सेस वो होती है कि हमें पीआर मिल जाए, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको पीआर मिल गई, वो बोलेंगे यार दिस वाज ऑल वर्थ इट, हम वी आर सक्सेसफुल, ठीक है, या हमें इसका बहुत बेनिफिट हुआ. तो इसके लिए आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट फॉर यू इज डिफरेंट देन व्हाट इट इज फॉर मी. करेक्ट. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मेन गोल था पीआर एंड दे वांट टू गो बैक नाउ. लाइक व्हाई वुड यू स्ट्रगल फॉर समथिंग दिस मच एंड यू नॉट लेवरेजिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ. इतनी मेहनत अगर आप बैक होम कर लेते हो तो शायद इट वुड हैव बीन मोर बेनिफिशियल. तो मैं वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है मेरा पर्सपेक्टिव उनके साथ कि आपने इतनी मेहनत करनी क्यों है जब आपको वहाँ वो चीज चाहिए नहीं. और अगर आपका सिर्फ पीआर गोल लेना है, यू वुड हैव एक्चुअली डन समथिंग एल्स टू बिल्ड योर स्किल, टू हैव समथिंग, यू नो, टू मेक समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ. एक बिजनेस हो गया, करियर हो गया, यू नो, टू रीच दैट टॉप ऑफ लेवल. बट ये लोगों की जो सोच है
ये बहुत ज़्यादा Right. रिवॉल्व होती है just to get PR. I think so. It's a high time to change your perspective Right. if you want to grow in your life. But a lot of people don't have that thing actually. करेक्ट, आई एग्री विथ यू। और मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि बहुत से लोग इसको यू नो बस PR इज एवरीथिंग, राइट? तो वो अब एवरीथिंग दैट दे डू, राइट, वो उसी डायरेक्शन में है कि हमारा इवेंचुअल जो पाथ है या गोल है वो PR है, Yeah. राइट? देन एवरीथिंग दे डू इज टू मेक श्योर दैट दे आर ऑन दैट पाथ, राइट, कि हम ये करें। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, राइट? अब बहुत, दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर इमिग्रेशन, especially for people who are already in Canada as students or workers हैं, या people who are outside of Canada and they want to immigrate. It's a very challenging time right now. But generally yes, I agree with you. और ये वही बात है जो अभी हम कर रहे थे, सक्सेस बेनिफिट वाली, कि मतलब है अब किसी का वो ड्रीम है कि मुझे ड्रीम है मैं कनाडा चला जाऊँ, तो फिर ठीक है। आप सुन के क्या आपको क्या होता है, लाइक हाउ डू यू टेक दिस, लाइक समटाइम्स यू डू लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? शुरू में मुझे लगता था कि यार ये इमेच्योर है और ऐसा है, Yeah. बट एज टाइम वेंट ऑन तो मैं समझता हूँ कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं आपके, Correct. कुछ आपकी एनवायरनमेंट होता है जहाँ से आप आते हो, कुछ आपके घर के अंदर चीज़ होती है, कोई आपके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, तो वो शेप करते हैं आपकी ओपिनियन को, आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपके गोल्स को। तो वो आपको इमेच्योर लगता है, Yeah. लेकिन ये कि अगर आप उसको थोड़ा सा देखो उसके शूज में जाके, तो आप बोला अच्छा यार, आई सी वेयर इज कमिंग फ्रॉम। Sometimes people come from a very toxic background कुछ and भी हो they just सकता want to है। get हाँ, out of the exactly, home. right? Yeah, तो could be उसके लिए तो possible. यही है ना कि भाई मेरा गोल है टू गेट आउट ऑफ दिस Correct. एनवायरनमेंट, Yeah. राइट? वो आपको लग रहा है यार बस तेरा ये गोल है, हाँ. लेकिन आपको नहीं पता कि व्हाट दैट Story. पर्सन इज गोइंग थ्रू। Yes. तो ये आहिस्ता 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 करके जो है आप डेवलप करते हो कि अच्छा यार ठीक है, ओके, व्हाई आर यू सेइंग दैट, देन यू गो अ लिटिल बिट डीपर। और वो इसलिए भी आप जाते हैं, एटलीस्ट मेरी कोशिश होती है, बिकॉज देन यू कैन थिंक ऑफ अदर सॉल्यूशंस, Correct. राइट? कि अगर किसी ने कहा यार मुझे PR चाहिए, ओके फाइन, लेकिन बट देन दे स्टार्ट टेलिंग मी मोर कि मुझे PR इसलिए चाहिए और मैं ये एम कर रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, तो फिर देन मे बी यू कैन लुक एट सम अदर सोल्यूशन। Yeah. कि ठीक है यार, फॉर एग्जाम्पल आजकल मे बी आपको यहाँ रह के PR नहीं मिलेगी, आपके पास एनफ टाइम नहीं है, ट्रांजिशन नहीं कर पाओगे। हाउ अबाउट यू गो बैक, गेट 1 year ऑफ फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, गेट दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वेट फॉर दीज थिंग्स टू सेटल डाउन एंड देन ट्राई अगेन। अभी एक सोल्यूशन है, Yeah. राइट? तो ये आपको आदत होती है, थोड़ा सा आप डेवलप करते हो कि थोड़ा सा डीपर किसी का जो है उसको डीपर लेवल पे समझने की, कि ठीक है ये तो कह रहा है, ये मुझे तो अजीब बात लग रही है यार, ये क्या बोल रहा है ये, बट Also उसकी कोई patience reason होगी। levels. Of course. People don't have patience. उनको लगता है कि फटाफट काम हो जाए. ये तो आपकी जो ये सोशल मीडिया जनरेशन और ये अटेंशन स्पैन, Correct. कंसंट्रेशन स्पैन, आपने सुबह कोई चीज ऑर्डर की, आप एक्सपेक्ट करते हो कि दोपहर में मेरे घर आ जाए। कोई आपको बोले यार 7 week डिलीवरी, 7 days की डिलीवरी, 1 week की डिलीवरी, तो आपका कैसे जो है कंसंट्रेशन स्पैन या Correct. अटेंशन स्पैन या पेशेंस कैसे आपका डेवलप होगा? पहले मैंने अपने उसमें शुरू किया जब ये मार्केटिंग का सोचना, लोग बोलते थे यार फेसबुक पे मार्केटिंग करो, ये करो, वीडियो बनाओ। अब जिनसे मैं मार्केटिंग का वो बोलते हैं भाई 10 सेकंड से ज्यादा कोई नहीं देखता, रील बनाओ या टिकटॉक करो या Correct. ये करो या वो करो, राइट? तो Correct. वो आपका अटेंशन स्पैन कितना श्रिंक हो बहुत गया, शॉर्ट हो गया. Yes. राइट? तो वो इसमें भी है कि मुझे तो PR शाम में चाहिए आज, एक साल में अभी नहीं, मुझे तो फटाफट अभी हो शाम जाए। में चाहिए। अब मेन क्वेश्चन है, जो इतने ज्यादा अनऑफिशियल लोग, उनकी जो पॉपुलेशन, जो लेवल, द पीपल, इट हैज इंक्रीज अ लॉट. व्हाट इज योर टेक ऑन इट, कि और कैसे सिचुएशन को संभाल सकते हैं और कैसे कितनी ज्यादा अफेक्ट हुई है ये चीज? हाँ, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि देखें जहाँ भी इस तरह से होता है ना, कोई कनाडा है, US है, UK है, जहाँ पे इमिग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इमिग्रेशन होती है, उनके सिस्टम्स हैं ऑफ पीपल कमिंग इन सारा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉर वन रीज़न और द अदर दे जस्ट स्लिप थ्रू द क्रैक्स, राइट? अच्छा, कुछ लोग तो शुरू से ही आते हैं प्लान करके कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, दे जस्ट वांट टू गेट टू अ सर्टेन कंट्री। जैसे हम इंग्लैंड में देखते हैं कि एक वो उनकी जर्नी शुरू होती है कहीं एशिया में, फिर वो नॉर्थ अफ्रीका से वो फिर यूरोप में एंटर करते हैं। तो वो एक, आप उसको जो भी कह लें, रेफ्यूजीज़ कह लें या आप उनको इकोनॉमिक माइग्रेंट्स कह लें, जो भी कह लें, तो एक तो वो होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे कनाडा में फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु केम टू कनाडा टू स्टडी इनिशियली, ठीक है, लेकिन दे नेवर वेंट टू देयर कॉलेज, दे नेवर वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब उसकी रीजंस बहुत सारी, ठीक है, वो तो एक सेपरेट पॉडकास्ट है कि क्यों ऐसे करते हैं। लेकिन फिर वो अब इलीगल हो गए, ठीक है, अब वो, और उनके पास और कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, रास्ता नहीं है, दे डोंट वांट टू गो बैक, वो यहीं रहेंगे।
एक तो वो नंबर बढ़ता गया, फिर बहुत सारे और लोग हैं जो यहाँ पे किसी तरह आए, विजिट वीज़ा पे आए या किसी और उसमें आए, एंड दे ओवरस्टेड, ठीक है। इनिशियली वर्क परमिट पे आए, वर्क परमिट मिल गया, वर्क परमिट आगे रिन्यू नहीं हुआ, लेकिन दे नेवर लेफ्ट। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वाली जो पॉपुलेशन है ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बल्कि यू नो देयर आर सम एस्टिमेट्स कि इट्स इन द मिलियंस राइट नाउ, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आप देखोगे कि अभी तक मेरे उसमें नज़र में देयर इज नो अदर कंट्री जिसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि देखो उन्होंने बहुत परफेक्टली इसको डील किया है, क्योंकि ये एक बहुत डेलिकेट टॉपिक है, ठीक है। अगेन जैसे अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि इमिग्रेशन की जब आप बात करते हो तो इमिग्रेशन इज नॉट जस्ट नंबर्स, ये ह्यूमन लाइव्स हैं। इसी तरह ये भी ह्यूमन लाइव्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, राइट। ठीक है, उसमें सम एलिमेंट ऑफ यू नो ब्रेकिंग द लॉ, नॉट ऑब्जर्विंग द रूल्स, वो सब भी है, लेकिन एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी है इसमें, ठीक है। इसमें फैमिलीज भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं। तो इसका कोई आई थिंक ऐसा सोल्यूशन तो नहीं हो सकता जो आप बोलो बस ये परफेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। इसका आपको गवर्नमेंट लेवल पे फॉर एग्जांपल कोई जैसे आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग आपको चाहिए कि अच्छा ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम या तो ये हम कर सकते हैं कि हम इसको देखें ही नहीं, हम वो ब्लाइंडर्स लगा लें, बोलें यार ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, जो बहुत अरसे तक लोग करते रहे, अमेरिका में होता रहा, यहाँ भी हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप उसको, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ एक प्रैक्टिकल तरीके से उसको सोचना शुरू करो कि देखो यार, अभी जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का ये आइडिया है कि इस साल ओवर 1 मिलियन लोग जिनके परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं, वो वॉलंटरीली कनाडा छोड़ देंगे जब उनके परमिट एक्सपायर होंगे, और वो पीआर में ट्रांजिशन नहीं अगर कर सकते हैं तो वो वॉलंटरीली कनाडा से चले जाएंगे। अभी ये कितना आप इससे अंदाजा लगाओ कि डिस्कनेक्ट है कि वो गवर्नमेंट को कैसे, आप किस बेसिस पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सब लोग चले जाएंगे। अब अगर आप मेरे लेवल पे आओ, कंसल्टेंट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, आपको पता है, और कोई और भी जो लोग यहाँ पे आए हैं यू नो फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक इमिग्रेंट कम्युनिटी में, कॉमन नॉलेज, सबको पता है कि यार ये सब वापस नहीं जाएंगे, कुछ उसमें से चले जाएंगे डेफिनेटली फॉर श्योर, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। तो अब ये गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी मेकिंग की, प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग, राइट, कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड टॉकिंग अबाउट इट, कि यार लेट्स टॉक अबाउट इट, यू नो, इसको हम टबू क्यों बना लिया हमने कि यार हम बात ही नहीं कर सकते इस पे। दूसरा प्रैक्टिकल यू नो एक सोल्यूशन उसका, अब उसमें बहुत चीजें हो सकती हैं, यू नो, आप उनको सोचो कि अच्छा यार ये अब तो ये यहाँ है, ठीक है, कोई प्रीवियस पॉलिसी फेलियर था, व्हाटएवर, अब तो ये इधर है, तो इनको हम क्या करेंगे, ठीक है। अब वो आप ये मास डिपोटेशंस और जहाजों में भर के वापस, ये दिस इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। तो इनको हम रेगुलराइज कैसे कर सकते हैं, राइट। कोई पाथवे खोल दिया कि ठीक है हमें यहाँ पे इस सेक्टर में लेबर की जरूरत है, इस सेक्टर में हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत है, तो आपने कोई पाथवे उनके लिए खोल दिया कि भाई आप ये ट्रेनिंग करो, 2 साल आप ये काम करो, तो हम आपको पीआर पाथवे पे डाल देंगे। दिस इज जस्ट समथिंग जो मेरे माइंड में एक वो है, आप इस पर सोच सकते हो कि इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह से करना है, कितने नंबर्स आपने करने, यही तो गवर्नमेंट का काम है कि इसको आप सोचो और इंप्लीमेंट करो, लेकिन इट हैज टू बी प्रैक्टिकल। ये कह देना कि जी 1.2 मिलियन लोग चले जाएंगे खुद से, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, राइट। इसमें बहुत सारी इसमें लेयर्स हैं, इसमें ये वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है इसमें, करेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अभी एड्रेस करो बिफोर इट टर्न्स इनटू एन इवन बिगर प्रॉब्लम, कि अगर आज 1 मिलियन है तो 10 साल के बाद 6 मिलियन हो जाएंगे अगर आप इसको एड्रेस नहीं करो, करेक्ट, ठीक है। तो ये एड्रेस आपको करना है, जो अभी हम यूएस में देखते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, और जो इलेक्शन में एक रीजन था कि वो यू नो ट्रंप वन वाज इमिग्रेशन, कि पीपल आर वेरी वेरी अनहैप्पी विद द वे इमिग्रेशन वाज बीइंग मैनेज्ड, करेक्ट। और वो इसलिए, मेरे ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग कि यू नो ये फैक्ट है, दिस इज माय ओपिनियन, कि पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। आप क्यों ये बात नहीं कर सकते कि यार जो इलीगल इतने सारे यहाँ पे हैं, इनको हम किस तरह डील करेंगे, व्हाई कांट यू टॉक अबाउट इट। I think so also sometimes government थिंकिंग हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है, नेगेटिव इमेज शो होता है कि लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका पॉइंट सही है बट ये हमारे इमेज के ऊपर। एब्सोल्युटली ये बात है, क्योंकि ये चीज जो है इमिग्रेशन, ये एक बहुत पॉलिटिकल चीज है। आप थोड़ा 2-3 साल पहले चले जाओ, कोविड था, ठीक है, कोविड में कितनी पॉलिसीज ऐसी, कितनी चीजें ऐसी होती थी जो आपको लगता था यार हाउ डज दैट मेक सेंस। एक मॉल यहाँ पे खुला हुआ है लेकिन 20 किलोमीटर दूर वो मॉल बंद है, सब बंद है, कि यार वहां पे वो ज्यादा केसेस हैं तो वहां पे बंद है, यहाँ कम, वो सब गाड़ी में बैठ के इस मॉल में आ गए,
अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये हाउ इज दिस प्रैक्टिकल, राइट? लेकिन वो उसने कहा कि नहीं यार हमारे कम है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं लोग बोलेंगे यहाँ क्यों बंद किया हुआ है आपने। तो ये जब पॉलिटिकल बन जाती है ना चीज, तो ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट बन जाता है। करेक्ट। यार हम ऐसी क्या चीज करें जिससे हमारी पॉपुलैरिटी वो हो, ठीक है? तो ये बड़ा अच्छा लगता है बोलना कि हमने वी आर हेल्पिंग दोज इन नीड, और हम यहाँ कनाडा में डाइवर्सिटी बढ़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीजें लगती है ना बोलना। लेकिन इस तरह की बात करना कि हम इलीगल जो यहाँ पे हैं, वी आर गोइंग टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन, ये ज़रा लगता है यार ये देखो ये इनह्यूमेन हो रहा है या ये। तो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि ये जो है ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक पॉलिटिकल कॉस्ट देखनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या है, राइट? तो ये चीज़ें आती हैं बिल्कुल, ये और ये वर्ल्ड वाइड है। करेक्ट। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है हाँ, इसमें right. कि जो लैक करती है। थैंक यू सो मच, आपने इतना एक्सप्लेन किया, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, थैंक यू। और आजकल जो मेन चल रही है प्रॉब्लम वो है कि लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनका वो वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है विद इन 5 to 6 months ऑफ स्पैन में। तो वो क्या करे, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? और वो बिकॉज LMIA भी बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ, आई फील लाइक इट्स अ स्कैम और समथिंग, बट उसके सॉरी उसके लिए आप कैसे उस चीज को, आपका लुकआउट है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के लिए, क्योंकि इतना कुछ बदल गया है और इतना कुछ जो है वो बदल रहा है, राइट? अभी आप देखो यहाँ पे ये इलेक्शन ईयर है, यहाँ पे अभी इलेक्शन होगा, मोस्ट लाइकली कंजर्वेटिव्स आ जाएंगे गवर्नमेंट में। तो ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि वो इसको फर्दर ट्वीक करेंगे, ठीक है? अब वो और उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं या वो कोई और स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करते हैं, ख़त्म करते हैं, ये ऑब्वियसली वी डोंट नो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी इस पे भी स्टैंप लगाएंगे इस पूरे सिस्टम पे कि ये हमने भी ये स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए। तो आई थिंक इट माइट गेट इवन मोर चैलेंजिंग डाउन द रोड इस साल में, टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द ईयर। तो क्या कर सकते हैं? देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको, जिसे मैं अपने क्लाइंट्स को जो मेरे पास आते हैं बोलता हूँ, आपको दी अनथिंकेबल को थिंक करना पड़ेगा। वो अनथिंकेबल ये था कि यार हमने वापस नहीं जाना, ठीक है? जो यहाँ पे आए, जिसे अभी हम बात कर रहे थे कि इतने पैसे खर्च करके आप आते हो, इतना आप करते हो, बेनिफिट सक्सेस क्या ये, देखें दैट वाज देन, ठीक है? मैं जब 10 years पहले आया था, जो उस वक्त चीज़ें थी, जो उस वक्त एक्सपेक्टेशंस थी, जो उस वक्त हालात थे ग्राउंड पे, दे वर वेरी डिफरेंट। अब अगर जो मेरी थिंकिंग या जो मैं जिस तरह सोच रहा था उस वक्त, मैं बोलूँ कि नहीं मैं वहीं लेके अभी भी अप्लाई करूँगा, तो दैट इज़ प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज इतना कुछ बदल जाता है। पिछले 2 years में बहुत कुछ बदल गया इमिग्रेशन स्पेस में, और इट इज़ इम्पेरेटिव कि अभी जो ये हैं सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ले लें या जो टेम्प्रेरी स्टेटस पे यहाँ पे हैं, वो इस तरह से भी सोचें कि यार ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है? सोचा नहीं था हमने ये, और ये हम इसको इस तरह से सोच के नहीं आए थे कि हम जो है वापस भी आ जाएं विदाउट PR और व्हाटएवर। लेकिन डेस्परेट टाइम्स में जब आप डेस्परेट हो जाते हो तो फिर आप डेस्परेट चीज़ें करते हो। सबसे पहली चीज़ इस सिचुएशन में जो कैजुअलिटी होती है वो लॉजिक होती है, कि आप लॉजिक जो है वो गोज आउट ऑफ द विंडो, और आपको जिसने कोई सोल्यूशन बता दिया कि यार गिव मी 20,000, मैं तुम्हारा ये अरेंज कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो अरेंज कर दूंगा, आप कर लोगे बिकॉज यू आर डेस्परेट, यू आर इमोशनल, यू आर डेस्परेट, राइट? कि आपको, एंड यू डोंट नो एनी बेटर, राइट? आप कहेंगे यार ये कैसे, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। इतना हम यहाँ पे सुनते थे कि स्टूडेंट्स आर पेइंग tens of thousands of dollars फॉर LMIAs, कि हमारा वो कोई प्रोविंशियल उसमें हो जाए, हमें वो 50 पॉइंट्स मिल जाएं, हमारी PR हो जाए। इतने लोगों ने किया और उनका काम भी हुआ बहुत सौ का। तो वो एक सक्सेस स्टोरी जो है वो देख के 100 और लोग उसके पीछे जाते हैं कि यार इसका हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, बिकॉज यू ऑफन डोंट हेयर अबाउट थिंग्स या दोज केसेस विच डिडंट वर्क आउट। जिसका काम हो गया वो तो सबको पता चल जाता है, जिसके 80 लोगों का काम नहीं हुआ वो आपको नहीं पता कि नहीं हुआ। तो आप सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी देख के आप बोलते हो यार मेरा भी हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए, आप सबसे पहले तो इवेल्युएट करो कि आपके पास ऑप्शंस रियलिस्टिकली क्या हैं, ठीक है? कोई डेस्परेट काम नहीं करो, कोई डेस्परेट, ये इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जितनी आपने अपने माइंड में बनाई हुई है कि यार अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल मुझे कनाडा से जाना पड़ा तो मैं कभी कनाडा नहीं आ सकूंगा या मेरे कभी PR नहीं होगी, ठीक है? आप इवेल्युएट करो अपने उसको कि क्या रियलिस्टिक चांसेस हैं आपके। मे बी 2-3 years डाउन द रोड कुछ और हो जाए। आप लेट्स से यू गो बैक टू इंडिया फॉर एग्जांपल, आप वहां गए, आपने जॉब की, आप पॉइंट्स अक्यूमुलेट कर रहे हो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के, ठीक है? तो एक तो ऑप्शन ये है कि आपको इस तरह सोचना पड़ेगा कि यार सोचा नहीं था हमने कि हम यहां से वापस जाएंगे विदाउट PR, लेकिन अगर करना पड़ा तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? हम सोचेंगे इस बारे में।
दूसरा, फॉर सम पीपल दे माइट स्टिल हैव टाइम और दे माइट स्टिल हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग ओवर टू समथिंग जिसको अब यहाँ पे इन डिमांड कहते हैं कैटेगरीज, राइट? हेल्थ केयर है, स्टेम है, इस तरह की और ऑक्यूपेशंस हैं। अब ऑब्वियसली आप यहाँ केमिकल बायोटेक पढ़ रहे थे, वो कर रहे थे, तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रांजिशन हो सकता है ईजी हो, लेकिन आप यहाँ पे कोई कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ कर रहे थे। आप यहाँ ह्यूमन रिसोर्स में डिप्लोमा कर रहे थे या मैनेजमेंट कर रहे थे, तो मैनेजमेंट से उठ के अब आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर तो शायद नहीं बन सकते, राइट? तो वो ट्रांजिशन थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको ये देखना है कि कोई तरीका है आपके पास कि आप ट्रांजिशन कर सको इनटू समथिंग विच इज मोर इन डिमांड, जिसमें आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग पिक्ड आइदर बाय अ प्रोविंस और थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। कोई रियलिस्टिक चांस है, आपका एनफ टाइम है कि चलो मैं कोई और 6 महीने की ट्रेनिंग करके इसमें कर लूँ। अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स आर लर्निंग फ्रेंच, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन जो है वो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी है। तो फ्रेंच जो सिखाते थे सेंटर यहाँ पे, उनके पास 1-2 लोग होते थे, अब उनके पास टाइम नहीं है, राइट? वो कह रहे हैं कि हम वी कांट कोप, तो इतने लोग फ्रेंच सीख रहे हैं। तो एक वो टाइम आएगा कि ये भी ओवरवेलम कर देंगे सिस्टम को, कि इतने लोगों के फ्रेंच के पॉइंट्स होंगे कि वो आपको उसमें भी आपकी बात नहीं बनेगी। लेकिन जो अर्ली वो थे, जिन्होंने अर्ली वो उसको देखा कि ओके फाइन, ये तो फ्रेंच का वो है, तो मैं अभी से शुरू कर लूँ, राइट? वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो एंड में वो करेंगे, वो फिर वो आप कंपीट कर रहे हो सारे लोगों के साथ। तो आप ये देखो कि आपकी ऑप्शंस क्या अवेलेबल है ऑन द टेबल। इवैल्यूएट किया आपने ऑप्शंस को किया। आप किसी से एडवाइस ले लो, राइट? कि आप किसी लॉयर से, कंसल्टेंट से, कि भाई आप इवैल्यूएट करके मुझे बताओ। लेकिन यू हैव टू बी रेडी कि सुनने के लिए वो चीज़ जो आप नहीं सुनना चाहते, विच इज़ कि यार यू माइट हैव टू गो बैक। और डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, इट विल नॉट पे फॉर यू। आप ये इतने सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो इलीगल रह रहे हैं यहाँ पे, आप उनसे कभी पूछोगे यार व्हाट इज़ योर लाइफ लाइक? क्या आप हमेशा आपको यार मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ जाए, मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़ जाए, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं वापस कभी नहीं आ सकूंगा, कोई इमरजेंसी हो जाए बैक होम, यू कांट इवन ट्रैवल, राइट? आप तो नहीं जा सकते। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया आपका। वो एक मेरे पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि वो जो पासपोर्ट इंडियन रिन्यू करने के लिए वो दे आस्क फॉर योर स्टेटस, कि आपका स्टेटस क्या है यहाँ पे, वो उसको उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। समबडी वाज रियली सिक बैक होम एंड ही वांटेड टू गो, लेकिन फिर उसको था कि मैं वापस कैसे आऊँगा। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट कि मैं यूएस का वीज़ा उसके पास था, कि मैं यूएस चला जाऊँगा, फिर आई स्नीक इनटू कनाडा। मतलब आप यू आर डेस्परेट, तो आप ये डेस्परेट चीज़ें करोगे। तो इसलिए डेस्परेट नहीं हो, इवैल्यूएट करो अपने ऑप्शंस, ओपन माइंड के साथ करो कि यार ठीक है, मैं जो भी है मैं सब कुछ देखूंगा व्हाट इज ऑन द टेबल, और फिर आप एक वो फैसला करो। ये है चैलेंजिंग टाइम। अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास सही एडवाइस देने वाले लोग भी नहीं हैं। I've met few of the consultant. I didn't had a good experience. Right. So unfortunately, क्योंकि उनके पास दूसरे बंदे को वो नॉलेज भी नहीं है, तो वो इजीली आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको गलत रास्ते पे डाल सकते हैं, जो आजकल हो रहा है with a lot of people. I feel so. I really feel so. They can come to you, and I think so. You're a very genuine person. इसमें देखें वो भी है कि आपको भी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, ठीक है ना? ये आप जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू टॉक टू समवन, या किसी ने आपको कोई एडवाइस दी है, दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट हैव टू डू एनी ड्यू डिलिजेंस योरसेल्फ। करेक्ट। मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ कि यार देखो, तुम मुझे ये 10,000 दो, मैं ये करूंगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। आपकी भी ड्यूटी है कि आप उसको वेरीफाई करो, यार ये जो कह रहा है ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता। सारा आपने अपना फेथ उसमें डाल दिया, 2 साल बाद वो नहीं बना काम आपका, तो फिर आपने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की। ये आपकी भी ड्यूटी है। और आजकल तो इतनी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। आप इमेजिन करो, जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था पेपर बेस्ड होता था, एक्चुअली एप्लीकेशन पेपर पे मेल होती थी कनाडा, वो वहां से मेल होती थी एम्बेसी, वहां से एवरीथिंग वाज पेपर बेस्ड, राइट? आपको इंफॉर्मेशन होती है, आप पूछ। अब तो आप ऑनलाइन बैठे हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते? आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप ये फोरम्स हैं उस पर चले जाओ, इतने ये व्हाट्सएप पे लोगों ने ग्रुप्स बनाए होते हैं। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास स्कैम होने का आजकल, या मुझे पता नहीं था। दैट्स ऑन यू, राइट? तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस भी करो, और किसी भी प्रोफेशन में, सिर्फ ये इमिग्रेशन के उसमें नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में एथिकल प्रोफेशनल्स भी होंगे, अनएथिकल प्रोफेशनल्स भी होंगे। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली रियलिटी है, राइट? कि मतलब ये तो हर जगह आपको फेस करना है। लेकिन उसको आप किस तरह से थोड़ा सा कर सकते हो, काउंटर कर सकते हो, अपनी ड्यू डिलिजेंस करके, कि जो ये मुझे कह रहा है यार, ये मैं पहले खुद देखूं, ये इज इट पॉसिबल, इज इट नॉट पॉसिबल, लेट मी टॉक टू अ फ्यू अदर पीपल एज वेल।
ठीक है, मतलब ये तो गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती आपको कि यार गारंटीड ये चीज ऐसे होगी, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। एट सम पॉइंट इट्स ऑल अ लीप ऑफ फेथ कि यार चलो ठीक है, मैंने अपनी ड्यू डिलिजेंस की, मेरी रिसर्च ये कह रही है, इसने मुझे ये कहा है, चलो ठीक है, आई एम गुड। लेकिन ड्यू डिलिजेंस तो करो आप अपनी। करेक्ट। और ऑल्सो आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो टैरिफ वाला चल रहा है। व्हाट इज योर, आपका मतलब, हाउ डू यू थिंक इट विल अफेक्ट आवर इकोनॉमी? इट विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव? क्या पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, यू नो, पॉजिटिव तो ये नहीं है। मतलब ये तो आई थिंक दिस विल, अगर ये होता है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा और ये होगा, अगर वो होता है तो इट विल हैव अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन कैनेडियन इकोनॉमी। देखें, यूएस का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मतलब उनको भी होगा इम्पैक्ट, लेकिन दे माइट बी एबल टू, जिसे वो कहते हैं, दे माइट बी एबल टू श्रग इट ऑफ, कि हुआ थोड़ा सा पेन हुआ, यू नो, गैस की प्राइस बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और उसमें ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स भी इम्पैक्ट होंगे। हर कोई यहाँ पे, जब चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं तो प्राइस तो ये नहीं देखती कि यार ये टेम्परेरी रेजिडेंट है कि ये परमानेंट रेजिडेंट है, एवरीबडी इज पेइंग द सेम प्राइस, राइट? तो इट विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड द इकोनॉमी विल सफ़र। और उसके फिर वो यू नो इम्पैक्ट होता है, जिसके वो रिपल इफेक्ट्स होते हैं कि ये महंगा हो गया तो ये नहीं हो रहा, फिर ये लोग नहीं ले रहे, फिर वो यू नो उसके बहुत सारे वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है उसका। तो आई होप इट डजंट हैपन, यू नो, अभी चलो थोड़ा 1 महीने का वो है, उसको डिफर किया है, आई होप इट डजंट हैपन, लेकिन अगर हुआ तो उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका ओपिनियन क्या है कि कैनेडियन, जैसे आपने नेगेटिव इम्पैक्ट बताया कि अगर ऐसा होगा, पर आपका क्या ओपिनियन है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इसको हैंडल कैसे कर सकती है? देखें, ये जो है ना, ये इसका इस वक्त तो अगर ये टैरिफ्स होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो इसका तो पेन होगा यहाँ पे, ठीक है, एक इकोनॉमिक पेन है लोगों के उस पर, यू नो, फाइनेंसिस पे, और इसका बहुत एक जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कैनेडियंस पे, कैनेडियन इकोनॉमी पे, लाइफ इन कनाडा पे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, यू नो, ये कनाडा के पास, अगर आप ये, मैं तो और पीछे जाऊंगा, राइट, डेकेड्स पहले चले जाएं, 70s में इमिग्रेशन शुरू हुई कनाडा में, ठीक है, तो उस वक्त से लेके अब तक मैं ये समझता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने लेवरेज नहीं किया है ये जो कैनेडियन, ये जो इमिग्रेंट टैलेंट आता है, कि इसको लेवरेज करके आप अपनी कंट्री को जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, आप उसकी स्टैंडिंग बढ़ाएं, आप उसमें जो यहाँ पे बिजनेसेस हैं, रिसर्च है और चीज़ें हैं, आप उसको लेवरेज करें। ये जो आप जो है इतने स्किल्ड लोग ले रहे हैं दुनिया से, 70 से 80 से लोग यहाँ आ रहे हैं, और अगर लास्ट आप 20-30 ईयर्स में भी चले जाएं तो बहुत स्किल्ड लोग आ रहे हैं, बहुत एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, तो आपने उसको लेवरेज नहीं किया, ठीक है, और आप एक अभी भी ऐसी स्पॉट पे थे कि आपको डराया धमकाया अमेरिका ने, तो आप बिल्कुल शेक हो गए कि आपके पास कुछ नहीं था, कि यार हम तो कुछ भी नहीं, क्या अभी आप इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो डेकेड्स की पॉलिसी मेकिंग होती है, राइट, कि आप जो है आपने ऐसा अपनी स्टैंडिंग आपने बढ़ाई, आपने ऐसे, आपके पास प्रोडक्टिविटी को आपने इंक्रीज किया, आपके पास और ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, या एक बड़ी आपकी जो विजन था वो ऐसा था कि आपने यही सोचा कि यार अगर एक वो हो गया, हमारा रिलेशनशिप कोई इफेक्ट हो गया किसी से, तो हम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएं। ऑब्वियसली आप बॉर्डर शेयर करते हैं अमेरिका के साथ, तो वो ट्रेडिंग पार्टनर तो आपका प्रॉबेबली बड़ा सबसे वही रहेगा, एंड इट्स सच अ बिग मार्केट। लेकिन ये कि आप इतने ओवरली डिपेंडेंट हैं एक उस पर, तो मैं इसको इसी तरह करूंगा कि देखें, इंडिया के साथ फॉर एग्जांपल कनाडा के रिलेशनशिप थोड़ा अभी अप एंड डाउन है। इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कनाडा के लिए, राइट, तो ये आपने जैसे वो प्रोवर्बियल पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अगर इंडिया से स्टूडेंट्स आने आपके कम हो गए या बंद हो गए, आपके पास क्या होगा कॉलेजेस का, राइट। आपने वो कोई डाइवर्सिफाई नहीं किया अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी को, कि ठीक है इंडिया से आ रहे हैं, ग्रेट, लेकिन हम कोई और मार्केट्स भी एक्सप्लोर करते हैं। की है इन्होंने थोड़ी बहुत, लेकिन 50-60% अभी भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो ये ओवर रिलाय, ये दिस इज पुअर पॉलिसी मेकिंग, दिस इज लैक ऑफ विजन। तो आपके क्वेश्चन के को आंसर के अभी तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि किया आपने और आपने उसको कहा देखो यार इसकी वजह से हमने इसका इम्पैक्ट कम कर दिया। ये तो अब आपका ये पॉइंट है कि आप सोचें कि यार दिस कैन नेवर हैपन अगेन, कि हम अभी से ऐसी क्या चीजें करें जो 8 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में हमें ऐसी पोजीशन पे लाएंगी कि इफ दिस वर टू हैपन अगेन, हम बोलें चलो ठीक है, वी आर ओके विद इट, यू नो, वील सर्वाइव। तो ये कोई क्विक फिक्स नहीं है इसका। गॉट इट, थैंक यू सो मच अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अगेन, इतनी सारी नॉलेज, आई हैड सो मच फन टॉकिंग टू यू। We will do another session. I feel like people need to know more and more about this. And this is for you. Oh, thank you. And I made it for you. Wow. We give
to every guest we have on our show. So thank you again. इतनी Thank you knowledge. so much. Thank you so I did much. try my best लिखने के लिए. I'm not. I And don't. you did such a great job. Thank you again. Thank you you. so Thank much. you. My pleasure. Thank you for again coming and for your presence. Thank you for having me. Thank you. तो कैसा लगा ये आज का एपिसोड? हमने पूरी कोशिश करी है इस एपिसोड के थ्रू कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो इमिग्रेशन की सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हम बात कर सके. बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर अप किया है जिससे आई होप इट विल हेल्प यू. एंड ऑल्सो द पर्सन वी हैड टुडे ही वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव उनके अपने फील्ड में. एंड he was more service oriented as compared to business oriented, because as I said in the podcast as well, I've met so many consultants and they have not given proper information. So I was very impressed by him that he made sure कि वो अपना पूरा point across रख रहे हैं. Thank you again, and we will be putting his LinkedIn profile का नाम. You can reach out to him if you want, and if you want actually consultancy, you can definitely reach out to him. So thank you again for watching this podcast, and please अपनी family के साथ, friends के साथ share करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये podcast बहुत informative था. So thank you again for so much जो आप प्यार दे रहे हैं. Please subscribe to the channel if you have not, and thank you so much for all the love. Lots of love.